I request Honorable Shri Abhishek Mishra ji, Minister of Science and Technology, UP, to kindly address the audience. Honorable Shri S.K. Kak Sahab, Vice Chancellor, Mahamaya Technical University, somebody who's been a driving force in our minds for bringing about change, not just in the quality of education, but also in the paradigm in which we think about education. Shri R.S. Rathore Sahab, Deputy Director, All India Council for Technical Education, who has very succinctly presented a framework that I sincerely believe has the power to transform this country and change the fate of employability in this country. If the National Vocational Educational Quality Framework, if that gets implemented in the letter and the spirit, I think that's going to be a huge contribution coming from AICTE. And I know Yogesh was involved. I and Yogesh were meeting Professor Mantha when we were talking about this, and I think it's a great initiative. I congratulate you and the team involved and the extended advisory team involved, which has been involved in discussing this topic and bringing it to fruition. Shri Yogesh Kochar, that brings me directly to Yogesh, Director Microsoft. He's been pushing so hard for this project, and I'm so extremely happy that today we are able to release 2.25 lakh email IDs for students of the MTU, and we have, in fact, with Microsoft, we've had these discussions at the very senior most level about connecting every single child in Uttar Pradesh with a free laptop. Yes, that's the vision of the Honorable Chief Minister, but also with email IDs and an online copy of Office 365, which is the most commonly used productivity platform, productivity software tool anywhere in the world. So Microsoft has been playing that important role in enabling students in Uttar Pradesh, and I thank them for that. Shri S.N. Rai Sahab, Director, Lava Mobiles. Shri Jagannathan Chelya, Director, Education and Technology, Texas Instruments. Again, a company which has been on many, many forefronts. You know, a company which has had a highly lucrative, highly impressive record of innovations and disruptive innovations at the same time coming from Texas Instruments. Shri V.K. Sharma, Managing Director, Gujarat Info Petrol Limited. You know, I was very happy to find somebody from Ahmedabad, having spent 6.5 years at IIM Ahmedabad. I have very good memories of the institution, and so warm welcome to you in the state of Uttar Pradesh. And finally, I think the person who's behind this beautiful setting, who's been the brainwave for bringing all of us together, for insisting to all of us that it's a very noble cause and you must all be present, and for whom I must seek forgiveness and apologize for being delayed today. But he knows that my intentions were always there. Such, you know, an eminent person, President CMAI Association of India, Professor N.K. Goel, members and dignitaries, others sitting on the dais, friends and, you know, eminent citizens of this great country, industrialists, friends from media, friends from the corporate houses, friends from academia, and above all, the very reason why we are all here today, without which, you know, there will be no need and mention of this, is the lovely students present here. आप सभी को अभिषेक मिश्रा का सादर प्रणाम, सादर नमन। दोस्तों, आज हम और आप जब CMAI नेशनल यूपी एजुकेशन समिट एंड अवार्ड्स 2013 के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो एक बहुत खुशी का दिन है। ये एक ऐसा दिन है जिसमें हमको और आपको अपनी जो जिंदगी की, लाइफ की, लर्निंग की, अचीवमेंट्स की जो जर्नी हमने अभी तक तय की है और वहां से चल के आज इस स्टेज तक आए हैं, कोई एक दिन रहा होगा जब आज जिनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, उन्होंने पहली नींव रखी होगी, पहली नींव का पत्थर रखा होगा। लेकिन उससे ज्यादा वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो दिन था जिस दिन वो सोच ने जन्म लिया उनके दिमाग में।
जिस दिन उनके दिल में वो बात आई कि हमें कुछ ऐसा करके दिखाना है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हों, चाहे एकेडमी के लोग हों, चाहे इंस्टीट्यूशंस और एकेडमिशियंस हो जिन्होंने इतने सुंदर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बना रखी हैं। सोच सबसे बड़ी ताकत है इंसान के, और आदमी जो मन बना ले उसे कर ही लेता है। फिराक साहब ने लिखा था ना कि तकदीरें बदल जाती हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, तकदीरें बदल जाती हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, मनुष्य खुद पे आ जाए तो तकदीरें बदल जाती हैं। सिर्फ उस सोच को पकड़ने की बात है। और हम में और आप में से मुझे लगता है, अभी बहुत की बात नहीं है, जब मैं भी पीछे स्टूडेंट्स के साथ बीच में बैठ करके बैठा करता था, ताली बजाते थे हम लोग, तो और बड़े बड़े मुझे कैम्ब्रिज पढ़ने का मौका मिला, MIT पढ़ने का मौका मिला, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन जाने का मौका मिला, बड़े बड़े लोग आते थे। एक नोबेल लॉरियट सीरीज थी हमारे यहाँ, जिसमें MIT में हर हफ्ते एक नोबेल लॉरियट बुलाया जाता था। तो चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, चाहे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी का हो, हम लोग हमेशा सुनने जाते थे। और सोच हर जगह से एक बात निकल के आती थी, वो थी सोच की। सोच की जो ताकत है, दैट इज द ओनली पावर विच इज इफेक्टिव, विच हैज द कैपेसिटी टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, ट्रांसफॉर्म डेस्टिनीज, not only of a people but of entire countries and nations. तो मैं उस सोच को, जो आज यूथ यहां बैठा है, मैं उससे स्पेशली अपील कर रहा हूं कि आपके दिल में जो विचार आते हैं, जो सोच आती है, जो ख्वाब आते हैं, जो सपने आते हैं, उनको पकड़िए। जिस आदमी ने आज हम जिस हॉल में बैठे हैं और जो सोच का ये नतीजा है, इन्होंने भी किसी दिन उस सोच को पकड़ा होगा। हम और आप रोज कई अच्छी बातें सोचते हैं, पकड़ते नहीं उसको। मुझे याद है इस देश में जब एक बहुत बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेसी के लिए, कई लोगों ने और कई प्लेटफॉर्म से, चाहे मीडिया का हो, चाहे सोशल चेंज का हो, चाहे NGOs का हो, चाहे स्टूडेंट्स का हो, चाहे एकेडमिशियंस का हो, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म्स रहे हो, हर प्लेटफॉर्म से एक बहुत बड़ा चैलेंज उठा अबाउट 2-2.5 साल पहले इस देश में, चाहे पूरी सैंक्टिटी ऑफ द सिस्टम पे, डेमोक्रेसी पे, कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, हमारी जो व्यवस्था है वो काम नहीं कर रही है, इसको बदलने की जरूरत है। और उस एक पेंट ऑफ ब्रश से सबको रंग दिया गया। आप उठा करके अगर नजर उठा के देखें और घुमा के देखें नजर, तो चाहे पॉलिटिशियंस हो उन पे सवाल उठते हैं, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो उस पे सवालों की कमी नहीं, लीगल सेटअप पे लोगों का विश्वास कम होता जा रहा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस पे क्रेडिबिलिटी गिरी है। चाहे समाज के आप जिस व्यवस्था को देखिए, मीडिया को देखिए, मीडिया पे बहुत बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। कोई प्रोफेशन, कोई ऑक्यूपेशन आज की तारीख में ऐसी नहीं है जिसको लोगों ने एक ब्रश से पेंट करना बंद न किया हो। सबको डिक्लेयर कर दिया कि सब बेकार है। दोस्तों, हमारे और आपके पास जो है वो यही है। If my mother is an illiterate, so what? She is my mother. This country, this nation, this state, this city, these breed of politicians, these breed of administrators, these breed of capitalists, these breed of journalists, these breed of jurists, these breed of media persons is all that we have got. We are not going to import people from anywhere else. We have to change the tone and tenor of our dialogue in this country. हम लोग आए अहमदाबाद में बैठ करके रोज ये बात किया करते थे कि बहुत गलत हो रहा है। फैकल्टी लाउंज में रोज का डिबेट था। आप समझ रहे होंगे मैं किस मूवमेंट की तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, पॉलिटिकल मंच नहीं है ये। सबको उन्होंने मंच से खड़ा होकर के वंदे मातरम गाते हुए ये डिक्लेयर कर दिया, सब चोर हैं, सब बदमाश हैं। कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जहां सब चोर हो, सब बदमाश हो, हर फील्ड में हो? और अगर है तो यही है मेरा जो है, इसी को मुझको और आपको मिलकर ठीक करना होगा। इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग फैकल्टी लाउंज में बहुत डिस्कस करते थे कि चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए, और उसके बाद उठते थे, अपने अपने कंसल्टिंग असाइनमेंट्स पे गए, या अपनी अपनी कॉर्पोरेट डील्स खोजी, या अपनी अपनी क्लास पढ़ाई और घर जाके सो गए। ऐसे वक्त में, ऐसे माहौल में, चुनाव से 1-1.5 साल पहले मुझको एक ऐसा इंसान मिला जिसने कहा कि हम जो है वो यही है, वो हमको और इसको आपको मिलकर ठीक करना होगा। अगर सब लोग भाषण ही देंगे और करने कोई कुछ नहीं आएगा, कोई उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होगा,
कोई उसका फल चुकाने को तैयार नहीं होगा, कोई उसके लिए सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं होगा, तो व्यवस्था बदलेगी नहीं। तो उस विजन के साथ हम लोग राजनीति में आए, और वो इंसान कोई और नहीं था, वो है जिसको आप हमारे उस डिस्कशन के 1.5 साल बाद आपने मुख्यमंत्री बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी को। उस आदमी का विजन था कि ये बदलेगा, ये व्यवस्था बदलेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो ताकत दी है, जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के साथ जो जिम्मेदारी का एहसास आना चाहिए, हमको वो पूरा एहसास है। वी अंडरस्टैंड दैट ग्रेट पावर्स मस्ट कम विद ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी आर अवेयर, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये विश्वास इंडिविजुअल लेवल पे और समाजवादी सरकार के लेवल पे नहीं टूटने पाएगा, चाहे कुछ भी हो। हम लोगों ने कहा, जब हमने लैपटॉप की स्कीम लॉन्च की, आपको याद होगा, आप में से बहुत पुराने लोग बैठे हैं यहां, MIT मीडिया लैब्स ने एक स्कीम लॉन्च की थी OLPC के नाम से, 1 लैपटॉप पर चाइल्ड। और उसके एक बहुत हमारे यहां फेमस डायरेक्टर हुए MIT मीडिया लैब्स के प्रोफेसर योहानसन, उन्होंने रिजाइन करके ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया था, MIT से रिजाइन किया, लाइवा मेंटेन रखा था, बट फुल टाइम रिजाइन किया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में हर बच्चे के हाथ में एक लैपटॉप देखना चाहता हूं। और उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया, उसमें मुझे लगता है दुनिया की कोई ऐसी कंपनी नहीं रही होगी जो न रही हो, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर के, डेल से लेकर के, HP से लेकर के, सब थी वहां। और उनको चैलेंज दिया गया कि $100 का एक लैपटॉप डेवलप करना है, और ये मैं सन 2000 की बात कर रहा हूं, 1999, 2000। $100 laptop became, a slogan for these companies and many countries and many organizations, including MIT Media Labs. बहुत फैनफेयर के साथ वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। 2 साल चलाया गया। अर्जेंटीना में चला, आप साउथ अमेरिका, ब्राजील में चला, और भी कुछ देशों में चलाया गया। एंड दैट प्रोजेक्ट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट फेल्योर। बहुत बड़ा फेल्योर हुआ वो प्रोजेक्ट। जब हमने ये बात सोची, जब लोगों ने कहना शुरू किया कि लोग कहते हैं कि समाजवादी लोगों को कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन वी एंड दे, तब हम लोगों ने चैलेंज लिया। हम लोगों ने कहा कि जिनकी ये सोच है, हम उसका मुंह से जवाब नहीं देंगे, अपने काम से जवाब देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने के बाद कि हम हर बच्चे के हाथ में एक लैपटॉप देंगे, तो बहुत सीनियर लीडर हैं, एक आप अब मीडिया के जो दोस्त हैं वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा ये झुंझुना है, ये कभी मिलने वाला नहीं है, ये झुंझुना है, ये मुख्यमंत्री बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, ये आज कभी भी हासिल नहीं होगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा था मैं 1 साल के अंदर अंदर लैपटॉप दूंगा, और मुझको खुशी है कि हम लोगों ने पहला झुंझुना उन्हीं को भेजा था कि, और वो साल भर के अंदर अंदर करके दिखाया हमने। आपने शायद सुना होगा कि लोगों ने कहा कि पानी, उबलते हुए पानी से किसी बेवकूफ आदमी ने कहा कि ट्रेन दौड़ेगी, लोहे की गाड़ी लोहे की पटरी पे पानी, उबलते हुए पानी से दौड़ेगी, क्योंकि उसने खौलती हुई केतली देखी थी। उसने देखा था कि केतली में जब मैं चाय बनाता हूं, पानी उबलता है तो उसका ढक्कन उड़ जाता है। तो लोगों ने कहा ये कैसी बात कर रहा है, अनाड़ी आदमी है। जेम्स वॉटसन की बात, ग्लासगो में, एडिनबरा में उसने प्रोजेक्ट किया था। तो लोगों ने कहा कि ये तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन वो लगा रहा, उसने सपने देखे, उसने संघर्ष किया, उसके लिए काम किया, और ट्रेन बनकर तैयार हो गई, और ट्रेन चली। लोगों ने कहा बंद तो गई है, चलेगी नहीं, चली। जब चल पड़ी तो लोगों ने कहा चल तो रही है, दौड़ेगी नहीं, दौड़ भी पड़ी। लोगों ने कहा दौड़ तो पड़ी, अब रुकेगी नहीं, और वो रुक भी गई। तो हमेशा आप जब भी बड़ी चीज सोचोगे, आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेट माइंड्स हैव ऑफ्टन फेस्ड स्ट्रिक्टेस्ट रेजिस्टेंस फ्रॉम मीडियोकर माइंड्स। आपका जितना बड़ा सपना, उतनी बड़ी रेजिस्टेंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। समाजवादी विचारधारा के बहुत बड़े नेता हुए जनेश्वर मिश्रा जी। मैंने तो उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, मुझे राजनीति में मात्र 1.5 साल हुआ है अभी, लेकिन पढ़ने का मौका मिला, पढ़ा मैंने उनका बहुत लिटरेचर। वो कहते थे कि बड़े सपने देखो,
एक बार उनकी जेएनयू की कहानी लिखी हुई, जेएनयू में बोलने गए, उन्होंने पूछा तुम्हारा सपना क्या है, जो बच्चे वहां पढ़ रहे थे उनसे। उनका सपना इतना सा है, बड़े हो जाएं, एग्जाम खत्म हो जाए, डिग्री मिल जाए, कोई एक नौकरी मिल जाए, एक मोटरसाइकिल खरीद लें, एक गर्लफ्रेंड हो या शादी हो जाए, वो मेरे पीछे बैठे मोटरसाइकिल पे और उसका दुपट्टा उड़े तो मुझसे टकराए। तो उन्होंने कहा ये कैसा सपना हुआ? सपना देखना है तो बड़ा सपना देखो, देश बदलने का सपना देखो, क्योंकि इस देश की धरोहर, इस देश की निधि, इस देश की पूंजी सिर्फ आप हैं जो मेरे सामने आज बैठे हुए हैं। You are all that we have, you are all that this country has got. आप वो कहते थे कि बहुत बड़े सपने देखो, लेकिन जितना बड़ा सपना देखो उसका 3 गुना संकल्प करना सीखो, उसका 3 गुना संकल्प करना, और जितना बड़ा संकल्प लेना उसका 3 गुना संघर्ष करने की तैयारी रखना। और जब ये कीमत चुकाने को तैयार हो जाओगे, इंग्लिश में कहा हुआ था ना, देयर इज नो फ्री लंच, जब ये कीमत चुकाने को तैयार हो जाओगे तो वो सपने सच हो जाएंगे। और मैं बड़ी बात नहीं करता, हम लोगों ने बड़ी छोटी सी हैसियत में बड़ा छोटा सा सपना देखा है और बहुत छोटी सी कोशिश की है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसका सीक्वेंस यही है। दोस्तों, आज हम लोग जिसलिए इकट्ठा हुए हैं, बहुत सारी बातें मन से कही गई, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी आवाज उनसे मिला करके, उनसे जोड़ करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज हम एजुकेशन समिट के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं कुछ सवाल जरूर उठाना चाहूंगा। सवाल है कि हमारे और आपके यहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत आ गए हैं। अभी बताया गया कि गुजरात की जितनी एक्टिव आबादी है उतने हमारे यहां बच्चे एनरोल्ड हैं। ये उत्तर प्रदेश का पोटेंशियल है, ये उत्तर प्रदेश की ताकत है, ये उत्तर प्रदेश का साइज है, ये उत्तर प्रदेश की मैग्नानिमिटी है। हम वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहां गए? एजुकेशन का जो चैलेंज ऑफ क्वालिटी है, education today has a challenge of perception. Education today has a challenge of supply. And biggerly, and more importantly, I think education today has a challenge of input. अगर सबसे अच्छा बच्चा, मैं साउथ कोरिया गया 2002 में पहली बार, वहां एक स्कूल के दौरे पे हम लोगों को ले गए लोग, तो मैंने उनसे पूछा टीचर्स से, उस समय हमारे यहां मुझे लगता है स्कूल के टीचर में सरकारी सिस्टम में जितना हम लोगों ने सुना था 2-4 हज़ार रुपए तनख्वाह देते थे उनको। वहां जो स्कूल की टीचर्स मिली, मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों को तनख्वाह उनका ठीक मिलती है साउथ कोरिया में? मुझे उम्मीद थी कि कहेंगे हाँ साहब थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो टीचर्स, नर्सरी जो प्राइमरी स्कूल की टीचर की बात थी उसकी बात बता रहा हूं आपको, अब क्या है मुझे नहीं पता। उसने कहा साहब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और वाइस चांसलर से ज्यादा तनख्वाह मुझे मिलती है, क्योंकि साउथ कोरिया ये कहता है कि अगर बच्चे की नींव ठीक हो गई तो वो आगे हो सकता है कुछ, अगर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं पढ़ाएगा तो हो सकता है खुद भी कुछ पढ़ ले, लेकिन अगर प्राइमरी और सेकेंडरी की एजुकेशन गलत हो गई तो जिंदगी में कभी दोबारा ठीक नहीं होगा बच्चा। हमको इस इनपुट के साइड को, वी विल हैव टू कंट्रोल द साइड ऑफ द इनपुट बिफोर वी कैन गेट क्वालिटी आउटपुट। मैं एक बात कहता हूं जहां जाता हूं कि खूब मेहनत करिए, खूब सपने देखिए, खूब बड़े काम करिए। कोई इंजीनियर हो जाए, कोई डॉक्टर हो जाए, कोई आईएएस हो जाए, कोई आईपीएस हो जाए, कोई आईएम अहमदाबाद चला जाए, कोई ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चला जाए, कोई बड़ा जर्नलिस्ट हो जाए, कोई बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जज हो जाए, लेकिन जब अपनी जगह, अपनी लाइन में, अपनी चोजन फील्ड में अपना कीर्तिमान स्थापित कर लेना और झंडा लहरा लेना और लोग जानने लगे कि हाँ इस फील्ड में एक ही आदमी है, इसका नाम है, उस दिशा में, उस आपकी लाइन में आपका नाम और काबिलियत स्टैब्लिश हो जाए, तब आप में से कुछ लोग उसको छोड़ करके राजनीति के बारे में भी सोचना, क्योंकि राजनीति बहुत बड़ा काम है और देश में, दुनिया में इससे बड़ी कोई नीति नहीं है जो इनकम टैक्स से लेकर के कॉस्मेटिक टैक्स तक सब कुछ इंपैक्ट करती है। आप में से जो बच्चे लेकिन वो उन्हीं की बात कर रहा हूं जो अपनी जगह बना लें, जो अपनी मंजिल पा लें। And let me tell you one thing, a map is never the territory. I cannot give you a formula, I cannot give you a mantra. You will, that's the unfortunate part, that's the difficult part. That's what makes it interesting, the journey that we call life. That you will have to carve your own road. The gentlemen on the dais and your seniors, your parents, they might be able to give you a map. But map is never the territory. You will have to carve your own road and create your own success stories. But when you do that,
After that, I invite some of you to think seriously about politics. It's a very serious profession, and believe you me, this is the only game changer that you can have. There can be nothing else. Nothing else will suffice. Friends, एक और चीज के बारे में मैं कहना चाहूंगा, वो है कम्युनिटी रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में। हम जो पढ़ रहे हैं उसको इंडस्ट्री के सिनर्जिस्टिक बनाना होगा। आप कम्युनिटी कॉलेज जाइए, मुझे याद है मैं बहुत सालों पहले डेट्रॉइट गया, जब डेट्रॉइट हुआ करता था, तो कम्युनिटी कॉलेज डेट्रॉइट में जो पढ़ाते थे वो बिल्कुल अलग था जो अगले शहर में पढ़ाते थे कम्युनिटी कॉलेज में, क्योंकि यहां इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल की थी जिसको उसकी जरूरत थी। अब बगल वाले शहर में स्टील मेकिंग इंडस्ट्री थी जो स्टील और एल्यूमिनियम सप्लाई करती थी ऑटो इंडस्ट्री को, उसकी जरूरतें बड़ी अलग थी, तो वहां की लर्निंग उसको फोकस करती थी, उसको कंसंट्रेट करती थी। ये एक चैलेंज आज हमारे सामने पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज है, कंटेंट मेकर्स के लिए चैलेंज है, पेडागॉजी मेकर्स के लिए चैलेंज है, डिलीवरी मैकेनिज्म्स के लिए चैलेंज है, और सरकारों के लिए पॉलिसी के लेवल पे चैलेंज है कि हम इस टेक्सचुअलाइजेशन को, इस लोकलाइजेशन को, इस लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज को कैसे अचीव करें। Whatever I can commit this here today on behalf of the government, that whatever needs to be done and whatever comes from this August gathering and other trained minds in the field, we'll be more than happy to consider that and implement it as in the speediest possible manner. That I can commit to you. एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज के अखबारों में भी है, कि हम हार्वर्ड क्यों नहीं हो सकते, हम ऑक्सफोर्ड क्यों नहीं हो सकते, कैम्ब्रिज क्यों नहीं हो सकते, MIT क्यों नहीं हो सकते, स्टैनफोर्ड क्यों नहीं हो सकते, येल क्यों नहीं हो सकते। आज के कॉलेज में भी है कि एजेंडा, आज का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने सुबह पढ़ा था, उसमें है कि हमारी वो जो ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट थी वो कहां खो गई, काशी विद्यापीठ थी कहां खो गई, हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी, इनकी जो रेपुटेशन थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो कहां खो गई। और मान लीजिए उनकी खो जाती 2-4-6 तो उसके बदले डेवलप हो जाती। Why do we not have an Harvard in India? Why do we not have an Oxford in India? I'm sure आपने इस पे बहुत डिबेट सुना होगा, बहुत बातें कही होंगी, लेकिन मैं एक दूसरा नजरिया आज आपके सामने रखना चाहूंगा। हम लोग PGP रिव्यू कमेटी में का मेंबर रहा मैं, IIM अहमदाबाद में, और मैंने वहां भी इसको बहुत स्ट्रांगली आर्ग्यू किया, डिबेट किया, और मैं खुशी से कहना चाहूंगा कि वहां पे हम लोग जीत के आए इस एजेंडा में कि हार्वर्ड को हार्वर्ड रहने दो, ऑक्सफोर्ड को ऑक्सफोर्ड रहने दो, काशी विद्यापीठ को काशी विद्यापीठ बचा लोगे तो बच जाएगा, और नहीं तो हार्वर्ड तो कभी भी नहीं बनेगा। फॉर द सिंपल रीजन कि बराक ओबामा महात्मा गांधी नहीं हो सकते और महात्मा गांधी मार्गरेट थैचर नहीं हो सकते। We are all individual people. We have our own sense of identities. We have our own local needs. हार्वर्ड क्यों बन गया? क्योंकि दुनिया का इकोनॉमिक मॉडल और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वहां शिफ्ट हो गया। जब हिंदुस्तान में था, आप देखिए दुनिया में, आप इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखिए अगर, और राइज एंड क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे तो देयर ऑलवेज यू विल फाइंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, इफ नॉट कॉजालिटी, अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। डेवलपमेंट के दो पहलू हैं मेरे दिमाग में, एक इकोनॉमिक्स और दूसरा डिफेंस। These are the two pillars, और इन दोनों की ही मातृभूमि, इन दोनों की फाउंडेशन एजुकेशन है। जो सक्सेसफुल मॉडल आज है वहां पे जो हो रहा है उसको होने दीजिए। हिंदुस्तान से गूगल बनना मुश्किल है और अमेरिका में नैनो बनना मुश्किल है, क्योंकि हमारा और उनका सोचने का तरीका अलग है, हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग है। वो नैनो नहीं बना सकते, टाटा एस नहीं बना सकते, मारुति 800 नहीं बना सकते। हम शायद आज की तारीख में अभी हमारी जो सोच है लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द मासेस की, वो शायद फेसबुक और गूगल वाली नहीं है। एक सेक्शन हिंदुस्तान में भी डेवलप हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान एक हिंदुस्तान नहीं है, यहां कई हिंदुस्तान है और कई इंडिया है और कई भारत है, जो भी नाम आप देना चाहें। लेकिन हमें अपने मॉडल्स डेवलप करने होंगे, हमें अपने सॉल्यूशंस खोजने होंगे। किसी को एप करके you can only be the second best, you cannot become that, you will never become that। मैं अगर किसी को एप करने लगूं, कॉपी करने लगूं, तो मैं उसका सेकंड हैंड प्रोडक्ट हो सकता हूं,
Abhishek Mishra नहीं हो सकता. And I'm far better, far happier being Abhishek Mishra for what Abhishek Mishra is. So, ladies and gentlemen, the message that I'd like to pass with you today is believe in yourself and be the best that you can be. Love the skin you are in, love the body you are in. I love my body. So I'm very happy and contented with the body I might have. So, and love the country that you have. That's the important message that I want to give you. Love the family that you have. Love the friends that you have. I will not go beyond that. There are many students, they might construe different meanings. दोस्तों, एक जिगर मलिहाबादी साहब की 4 लाइनें हैं. मैं आज आपसे इस बात से कह रहा हूं जो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि जो अच्छाई है अपनी उसको बचा के रखो, संवार के रखो और दूसरे के सामने अपनी ताकत प्रस्तुत करो. चाइना इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट. कि बात अच्छी हो तो उसकी हर जगह चर्चा करो. बात अच्छी हो तो उसकी हर जगह चर्चा करो. है बुरी तो दिल में रखो और उसे अच्छा करो. है बुरी तो दिल में रखो और उसे अच्छा करो. और रोशनी करने का मतलब ये नहीं होता कि रोशनी करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जिसको पर्दा चाहिए उसको बेपर्दा करो. जिसको पर्दा चाहिए उसको बेपर्दा करो. जैसे मुझ में, आप में, सभी में कुछ कमियां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं. उसी तरह हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर में, हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारे परिवार में, हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे दोस्त में, हमारे माँ बाप में कुछ अच्छाइयां होंगी, कुछ कमियां होंगी. लेकिन उनको, जो अच्छाइयां हैं उनको निखारिए, कमियों को दूर करिए. एंड आई एम श्योर वी विल बोथ टुगेदर मेक दिस स्टेट, मेक दिस कंट्री अ ग्रेट नेशन, अ ग्रेट प्लेस टू लिव इन. माई हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू द अवॉर्डीज टुडे. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. जय हिंद. Friends,